So we were discussing capacitors. Capacitor is a device which is designed to hold charge. A single conductor can also hold charge, but we can increase its ability by placing another conductor in proximity of it. So what happens on the second conductor? Suppose we are having a plate. Near a charged plate, we will put another plate. Then due to induction, the second plate will get negative and positive both type of charges. But if we ground the second plate, then the net charge on the second plate remains as negative. And due to the presence of negative charge in the proximity, the potential of the first plate also decreases. And due to decrease in potential, more charge can be stored. Clear है यहाँ तक? So this arrangement was known as parallel plate capacitor, and we have calculated its capacitance epsilon naught A by D. So from this expression it is clear that C is proportional to area of cross section of the plates and distance between them. And we had also discussed about the unit of capacitance, that is 1 farad, but 1 farad is a very huge quantity. तो इसलिए हमारे जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो यूज़ होते हैं कैपेसिटेंसेस के वैल्यूज, दे आर इन द रेंज ऑफ मिली फैरड एंड माइक्रो फैरड. ओके, दिस वाज आवर डिस्कशन इन द अर्लियर क्लास. सो दिस इज द पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, सेकेंड प्लेट को ग्राउंड करना ज़रूरी है, बिना इसके ये कैपेसिटर का काम नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इफ यू डोंट ग्राउंड द सेकेंड प्लेट, द नेट चार्ज ऑन द सेकेंड प्लेट इज 0. सो इट डजेंट डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट. सो सेकेंड प्लेट हैज़ टू बी ग्राउंडेड. ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट है, ये इसका कैपेसिटेंस है. बट व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर? सपोज वी आर प्लेसिंग a dielectric medium and the space between these plates has been filled completely with a dielectric medium. Dielectric medium is non-conductor. तो non-conductor को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? दिस प्लेट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन है, सपोज इफ़ वी ड्रॉ लाइक दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज and this is negative charge. So there will be an electric field in this region. Now if a dielectric medium is placed in a electric field, then what happens? The dielectric medium gets polarized. Polarization of dielectric, this we have already studied. ये गलत बना है. पॉजिटिव के साइड में होगा नेगेटिव एंड नेगेटिव के साइड में होगा पॉजिटिव. ये हो जाता है पोलराइजेशन. एंड ड्यू टू पोलराइजेशन व्हाट हैपेंस? The surface of this dielectric also gets some charge density, and that charge density is known as polarization charge density. And here the charge density on the plates is suppose sigma. Okay, and the electric field due to charge density on the plates is suppose E0 or E external you can say. And due to polarization charge density, another field is developed inside the dielectric. Suppose this is E internal. So the net field inside the dielectric becomes less than that between the plates. प्लेट्स के बीच में पहले जितना फील्ड था E0, अभी वो E0 से इतना माइनस हो जाएगा. सो नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक becomes vector sum of E external and E internal. Okay, so vector sum है, डायरेक्शन देखकर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. Here you can see the directions are clearly opposite. It means the net field will be magnitude of net field will be the difference of magnitude of these two fields. तो यहाँ जो net field होगा E net, that will be E naught minus E internal. इतना field हो जाएगा. ठीक है, field की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया, और पोलराइज होने की वजह से उसमें एक पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी आ गई, और इसलिए अंदर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डेवलप हो गया. फाइनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सिमिलर चीज़ यहाँ पर होगा, एक ही बात तो है. तो यहाँ हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो नेट फील्ड है वो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, E0 माइनस EP लिख देते हैं. EP मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. क्लियर? सो
नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस ई और ई नेट, यहाँ वेक्टर नहीं लगाते हैं क्योंकि इधर भी वेक्टर नहीं है, ये वाली गलती। ई की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी ई। तो पहले ई नॉट देख लेते हैं। ई नॉट क्या चीज़ था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था पिछले ही क्लास में। दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच वाले रीजन में कितना फील्ड होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फील्ड होगा। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक के सरफेस को देखें, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के सरफेस को, कैपेसिटर को हमने हटा दिया, तो इधर कैसा चार्ज था, माइनस सिग्मा पी, सॉरी इधर प्लस होगा क्योंकि इधर माइनस था ना, प्लेट माइनस था तो डाइलेक्ट्रिक में इधर प्लस होगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला फील्ड हुआ, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक के सरफेस को केवल देखें तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक पॉजिटिव प्लेट जैसा बिहेव करता है, ये भी पॉजिटिव प्लेट जैसा बिहेव करता है। बीच में कोई नेट चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बात तो कंडक्टर के लिए हमने पढ़ी थी ना, कंडक्टर के अंदर स्टैटिक चार्ज नहीं होता है, बट ये तो कंडक्टर नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक है, फिर भी अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों होगा, देखो इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में दो मैकेनिज्म था पोलराइजेशन के लिए, दो मैकेनिज्म, वन इज़ फॉर पोलर डाइलेक्ट्रिक, अनदर इज़ फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। In case of polar dielectrics, what happens? Every molecule has its dipole moment, but due to random orientation of all these millions of small tiny dipoles, the net dipole moment becomes zero. To have a certain value of dipole moment, we need to polarize the material. And how do we polarize? We place the material in a polarizing field. And what happens? Those tiny dipoles get aligned in the direction of electric field and we get a net dipole moment. 100% alignment नहीं होता है, still the net dipole moment will be there and that will be in the direction of electric field. तो ये तो पोलर वाले क्या हुआ। नॉन पोलर में क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाता है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर ऐसे हो जाता है, ठीक है, एंड वी गेट अ डाइपोल मोमेंट। सो इन बोथ द केसेस, सपोज फॉर सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। मान लो कि ये डाइपोल्स थे और अभी ये अलाइन हो चुके हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डाइपोल्स में क्या दिखाना है हमें, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजिंग फील्ड, देन व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ दीज डाइपोल्स। क्या होता है, ई और पी सेम डायरेक्शन में जब तक नहीं होते हैं तब तक टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है। और पी का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। समझ में आया, जैसे यहाँ पे इधर नेगेटिव दिख रहा है इधर पॉजिटिव, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो डाइपोल्स थे उनका अलाइनमेंट इस तरह से हो गया, दिखाई दे रहा है, सारे डाइपोल्स का अलाइनमेंट फील्ड के अलॉन्ग हो गया। देखो इसका इधर हुआ ना पी वेक्टर, माइनस से प्लस की तरफ, इसका पी वेक्टर इधर, इसका पी वेक्टर इधर, ठीक है। सबका पी वेक्टर जब तक फील्ड के अलॉन्ग नहीं हो जाता तब तक टॉर्क लगता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हुआ। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ सरफेस पर चार्ज दिखाया, अंदर नहीं दिखाया। यहाँ पर हमने अंदर भी दिखाया है, लेकिन अगर हम ज़रा ध्यान से देखें तो क्या दिखता है, सपोज़ इस पार्ट को हमने अलग कर लिया और इस पार्ट को अलग कर लिया, ठीक है। तो अंदर जितना तुम चार्ज काउंट करोगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दिखाई दे रहा है, जितने प्लस उतने माइनस। तो अंदर चार्ज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट नेट चार्ज बिकम्स ज़ीरो। कंडक्टर के केस में क्या होता है, अंदर चार्ज रहता ही नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। यहाँ पर चार्ज है बट नेट चार्ज इज़ ज़ीरो। क्लियर है। सो चार्ज अपीयर्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इधर ये प्लस प्लस दिख रहा है, सो इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इधर ये माइनस माइनस दिख रहा है, इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा पी लिखने का मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, और यू कैन से पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट हैपेंस, this side of the dielectric acts like a positively charged plate and this side of the dielectric acts like a negatively charged plate। तो ये भी प्लेट के जैसे हो गए। अब इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है तो फील्ड इतना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा पी हो जाए तो फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? ये कौन सा फील्ड था? फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स व्हेन देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एंड दिस इज द फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। दो फील्ड हो गए। नेट फील्ड क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। सो नाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। So what will be the net electric field? Therefore, magnitude of net electric field, magnitude of net electric field, E will be equal to E naught minus EP, sigma minus sigma P by epsilon naught। यहाँ तक पहुँच गए? अब देखो, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक किस पर डिपेंड करता है? कितना पोलराइजेशन होगा? दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। पोलराइजेशन डिपेंड करता है पोलराइजिंग फील्ड के स्ट्रेंथ पर। जितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, पोलराइजिंग फील्ड मतलब जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट करता है, एंड अलाइनमेंट टेक्स प्लेस हाउ? द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज टॉर्क ऑन द डाइपोल एंड द अलाइनमेंट टेक्स प्लेस टॉर्क PE sin थीटा। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, PE sin थीटा। ई जितना स्ट्रांग होगा, टॉर्क उतना ज़्यादा लगेगा, अलाइनमेंट उतना ज़्यादा होगा। इट मीन्स पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलराइजिंग फील्ड। समझ में आया? पोलराइजिंग फील्ड यानी यहाँ जो प्लेट्स के बीच में फील्ड था ई नॉट, पोलराइजिंग फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, यानी कि उतनी ही ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हमें डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर मिलेगी। इट मीन्स सिग्मा पी डिपेंड्स ऑन E नॉट एंड E नॉट डिपेंड्स ऑन सिग्मा। देखो, E नॉट जितना ज़्यादा सिग्मा होगा, यानी कैपेसिटर प्लेट्स पर जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, E नॉट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि पोलराइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एंड इफ द स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजिंग फील्ड इज मोर, देन मोर पोलराइजेशन विल टेक प्लेस। इट मीन्स पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो consequently what do we get? Sigma P is proportional to sigma, and if sigma P increases by increasing sigma, then sigma minus sigma P also increases। ध्यान से समझना, sigma minus sigma P क्या चीज़ है? sigma और sigma P का डिफरेंस है। sigma P अगर बड़ा हो जाए, sigma P अगर बढ़ जाए, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाए, तो क्या होगा? sigma माइनस sigma P का क्या होगा? लेकिन सिग्मा भी तो इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा भी बढ़ेगा, सिग्मा माइनस पी भी बढ़ेगा, ठीक है, बट अल्टीमेटली सिग्मा विल बी लार्जर, ठीक है, क्योंकि अंदर है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ाओगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी बढ़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। याद होगा ना? सेम पोलराइजिंग फील्ड लगाने पर हर मटेरियल में इक्वल पोलराइजेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। रबर के लिए अलग हो सकता है, पेपर के लिए अलग हो सकता है, वुड के लिए अलग हो सकता है। डिफरेंट मटेरियल शो डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ पोलराइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। एक ही बराबर फील्ड लगाया बट डिफरेंट पोलराइजेशन हो सकता है। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। तो इसका मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी यहाँ जो इन्वॉल्व होगी वो यहाँ कांस्टेंट में आती है। देखो कैसे, सिग्मा पे डिपेंड करता है, यहाँ तक समझ आया। सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये भी सिग्मा पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल 1/k सिग्मा। व्हाट इज़ k? K is known as dielectric constant, that is the property of the material। ये material की property है, dielectric constant। Important things are kept in a box। So K is dielectric constant। तो अब हमने सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा पता कर ली, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे इसमें इक्वेशन 3 में। तो हमें नेट फील्ड का पता चल जाएगा कितना होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं K इज़ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसके बारे में अभी और डिस्कशन होगा
एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो if we use equation 4 in equation 3, we get magnitude of net electric field. So from equation 3 and 4, what do we get? From 3 and 4, E is equal to, in place of sigma minus sigma p, we will write this. So it becomes sigma minus sigma p इधर है, sigma by k epsilon naught. So what is the difference between the electric field when there was no dielectric medium and now we have filled the space between the plate with dielectric medium? So what is the difference? You can see from here. If a material of dielectric constant K is filled between the plates, then the electric field becomes 1 by k times, 1 by k times हो जाता है, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड विद दिस रिलेशन, मालूम है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, E इंटू डी. अगर E चेंज हुआ तो V भी चेंज हो जाएगा, और अगर V चेंज हुआ तो कैपेसिटेंस यानी कि Q बाई V ये भी चेंज हो जाएगा. समझ आया? तो अब देखते हैं कैपेसिटेंस में क्या हुआ. So capacitance of the parallel plate capacitor when there was no dielectric medium between the plates, it was epsilon naught A by D. Now we have filled the gap between the plates with a medium of dielectric constant K. So what will be the new capacitance? So first of all, we need to calculate potential difference between the plates. Earlier it was E naught into D. Now it is E into D. What is E? E is sigma by k epsilon naught d. Okay, so this is V. Therefore, capacitance, new capacitance of the capacitor can be calculated as C equal to Q by V. So in place of sigma we will write surface charge density की वैल्यू क्या होगी, total charge by area. Sigma क्या चीज़ है? What is sigma? Surface charge density. Okay, surface charge density means total charge by total area, Q by A. So in place of sigma we will write Q by A. This is K epsilon naught. थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, K epsilon naught A. This is V, potential difference between the plates. यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, K epsilon naught A by D. आ गया ना? तो ये हमारा नया कैपेसिटेंस है आफ्टर filling the gap between the plates with a dielectric medium of dielectric constant K. Now compare it with the capacitance of the same capacitor when it was having no dielectric medium between it, or you can say air capacitor. Air capacitor means there is air between the plates of the capacitor. 12th क्लास में एयर को हम वैक्यूम मान सकते हैं, बट हायर क्लास में ऐसा नहीं होता है. हायर क्लास में एयर अलग है, वैक्यूम अलग है, ठीक है, बट यहाँ पे हम एयर कैपेसिटर को वैक्यूम कैपेसिटर बोल सकते हैं. सो व्हाट डू यू सी विद इन दिस कंपैरिजन? सपोज वी राइट सी नॉट. सी नॉट मतलब खाली जगह, कुछ नहीं. जीरो मतलब कुछ नहीं है. तो जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था, देन कैपेसिटेंस वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. नाउ वी हैव फिल्ड द गैप with a dielectric of dielectric constant K, it becomes K epsilon naught A by D. So what is the difference? Capacitance has increased K times बढ़ गया है, ठीक है. अगर रेशियो निकालेंगे C by C naught K आ जाएगा. तो ये वाली जो इक्वेशन है ये मटेरियल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करने, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए काम आता है. कौन सा? ये वाला C by C naught इक्वल टू K. मतलब एक कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है. हायर क्लासेस में तुम्हें करने को भी मिलेगा ये वाला एक्सपेरिमेंट. कॉलेज में क्या करते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं. सबसे आसान तरीका क्या होता है कैपेसिटर का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लो. कैसे? एक छोटा सा कप जैसा लेते हैं, प्लास्टिक का या पेपर का कप भी ले सकते हैं, और उसमें दोनों तरफ मेटेलिक प्लेट्स डालते हैं, ठीक है, एक जैसे एरिया वाली प्लेट्स, और उनके बीच का गैप फिक्स कर देते हैं. फिर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता लगाते हैं. कैसे पता लगाते हैं?
ये भी हर क्लास में पढ़ने मिलेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज बना सकते हैं कैपेसिटर के लिए भी, नॉट ओनली फॉर रजिस्टर, कैपेसिटर के लिए भी बना सकते हैं। और एक अननोन कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें जो हमारा कैपेसिटर बना है, कप में 2 प्लेट्स डाल के, एयर कैपेसिटर, बीच में कुछ नहीं डाला, तो उसका कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसी कप में वो मटेरियल भर देते हैं प्लेट्स के बीच में जिसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, हमारे कॉलेज में कराया गया था, एक कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना था। तो लिक्विड होता है तो कम्प्लीटली फिल करने में आसानी रहती है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल होता है तो हो सकता है कहीं पे एयर गैप्स रह जाएं। तो हमने क्या किया था, कैस्टर ऑयल यूज़ किया। कैस्टर ऑयल उस कप में भर दिया, पहले खाली एयर कैपेसिटर का निकाल लिया, फिर कैस्टर ऑयल उसमें डाल दिया। कैस्टर ऑयल डाल के फिर कितना कैपेसिटेंस आया वो पता चल गया। फिर C और C0 को डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आई दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कैस्टर ऑयल। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस इक्वेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात। और एक काम कर सकते हैं कि K और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन भी हम देख सकते हैं, ये K इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी एक और नॉन क्वांटिटी आ जाती है जो कि कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी, विच यू हैव स्टडीड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। रिलेटिव परमिटिविटी याद है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। कूलम्स लॉ जब लिखते थे, कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे लिखते थे ना। इफ़ देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस की इसमें कोई मीडियम नहीं है, तो इतना फोर्स आता था कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई पता है ना, तो वही है, 4 पाई है, तो इतना कूलम्स लॉ होता था। बट इफ़ देयर इज़ अ मीडियम बिटवीन द पॉइंट चार्जेस देन व्हाट हैपेंस, द फोर्स बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हाँ आर लाएंगे वहाँ पे, जो फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इफ़ देयर इज़ एनी मीडियम देन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये वैक्यूम में था और ये मीडियम में था। फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं और फिर पता लगता है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है दैट इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यहाँ भी यही काम कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर के बराबर आ जाती है। ठीक है, सो एप्सिलॉन और आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसीलिए कुछ बुक्स में कूलम्स लॉ ऐसे भी लिखा मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ऐसे भी लिखा मिलेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कुछ बुक्स में K की जगह एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आया। अब देखो, अगर हम पोलराइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाएं, पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, बिकॉज P पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग फील्ड। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाओगे पोलराइजेशन बढ़ेगा। बाय द वे, व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन दो तरह से बोला जा सकता है। एक तो है पोलराइजेशन, दैट फिनोमिनन जो हो रहा है दैट इज़ पोलराइजेशन, और दूसरा उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी था, पोलराइजेशन। याद आया, डिस्कस हुआ है, इसीलिए पूछ रहा है। करेक्ट, कौन बोला? कौन बोला? यस, करेक्ट। पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। पोलराइज हो गया ना डाइलेक्ट्रिक, अंदर एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे अगर, तो उस छोटे से पीस का कितना डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। ठीक है, तो जिन डाइलेक्ट्रिक्स में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, जैसे जैसे पोलराइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे पोलराइजेशन बढ़ेगा। दिस काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर नोन एज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लिखा है, समझ जाना, डॉक्टर स्टाइल में लिखा है, D दिख रहा है और लास्ट में C दिख जाएगा, बीच में पता नहीं क्या है। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नाम याद रखना, डिफिकल्ट नहीं है ना। लीनियर मतलब जो लीनियर रिलेशन फॉलो करता है, पावर 1 है ना दोनों तरफ, तो लीनियर रिलेशन हुआ। आइसोट्रोपिक मीन्स किसी भी डायरेक्शन में, जैसे हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, सपोज ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ऐसे रखा है। ठीक है,
इस डायरेक्शन में अगर हमने रखा, ऐसे फील्ड लगाया, ये सपोज हमारा फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये फील्ड का डायरेक्शन हुआ, सपोज ऐसे हमने फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो भी P प्रोपोर्शनल टू E था। अगर डाइलेक्ट्रिक को घुमा दिया तो भी P प्रोपोर्शनल टू E है, ऐसे रख दिया तो भी P प्रोपोर्शनल टू E है, देन इट इज़ नोन एज आइसोट्रोपिक। किसी भी डायरेक्शन में लगाओ P प्रोपोर्शनल टू E रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे E बढ़ाते जाओगे P बढ़ता जाएगा। लिमिट है, ऐसा थोड़ी कि पोलराइजेशन बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ाते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब ये जो स्ट्रेचिंग हो रहा था पॉजिटिव नेगेटिव का, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग, या जो डाइपोल अलाइनमेंट हो गया उसके बाद भी हम फील्ड लगाते जा रहे हैं। दोनों केस में होगा। पोलर वाले में क्या होगा, पहले तो अलाइनमेंट होगा, फिर और फील्ड बढ़ा दिया तो जो डाइपोल अलाइन नहीं हो रहे थे वो भी हो गए। शुरू में सब लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, फिर हम थोड़ा अपना पावर दिखाते हैं, धीरे धीरे जो नहीं मान रहे थे वो भी मानने लगते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस दिए ही जा रहे हैं, नहीं सिर्फ हमारी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, स्ट्रेस दिए ही जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा, म्यूटिनी, टूट जाएगा, सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज करें, सिर्फ अपनी चलाएं, कुछ भी नहीं। तुम सांस भी लोगे तो मेरे बोलने से लोगे कि 1 मिनट में तुम्हें 60 बार सांस लेना है या 100 बार लेना है, तो ये तो हद ही हो गई, तो सिस्टम टूट जाएगा। दिस इज़ नोन एज ब्रेक डाउन। तो डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डाइलेक्ट्रिक बियर कर सकता है, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। पोलराइजिंग फील्ड कहाँ से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है, V प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो E कहाँ से आ रहा है, V से आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, फिर लिमिट क्रॉस हो गई तो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। सबके लिए अलग अलग होगा। कोई सिस्टम में हम ज़्यादा पोलराइजिंग फील्ड, ज़्यादा स्ट्रेंथ से फील्ड लगा सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होगा। कोई सिस्टम जल्दी टूट जाएगा, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। स्पेशली फील्ड कैपेसिटर, सपोज ये हमारा कैपेसिटर था, फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, और हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब बीच में रख दिया, ठीक है। कंप्लीटली फिल नहीं किया, एक स्लैब बीच में डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस थी सपोज T, और जो पूरा गैप था प्लेट्स के बीच में वो था D। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ रख देने से क्या होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड और यू कैन से फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक विल गेट पोलराइज्ड। लेकिन पोलराइज होने से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो फील्ड आ जाएगा, E इंटरनल, ये सपोज E एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर E इंटरनल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सपोज E नॉट डैश हो गया। E नॉट डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E नॉट माइनस E इन, इतना होगा। तो इस रीजन में, ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है जहाँ डाइलेक्ट्रिक भरा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट डैश होगा, लेकिन जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे क्या होगा, E नॉट होगा। समझ में आया। खाली जगह में कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जहाँ डाइलेक्ट्रिक है वहाँ K सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे फील्ड क्या होगा, लिख लेते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है E नॉट डैश, वहाँ क्या होगा, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। समझ गए बात। तो सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं होगा। हाँ कुछ बोल रहे, कुछ पूछा किसी ने, ठीक है। तो जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ और होगी, और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पर कुछ और होगी, बिकॉज पोटेंशियल स्पेस है, यानी कितने स्पेस में E नॉट फील्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V नॉट। V नॉट की वैल्यू क्या होगी, E नॉट इंटू डी माइनस टी। खाली जगह कितनी है, D माइनस टी, तो ये हो गया। और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पे क्या होगा, E नॉट डैश इंटू टी। डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह में, T, इतनी जगह में, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल क्या होगा, V नॉट प्लस वी के, E नॉट डी माइनस टी प्लस E नॉट डैश इंटू टी।
ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और इधर सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट टी। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इधर मिलेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सिग्मा को लिख देंगे क्यू बाय ए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। ये आ गया, V आ गया। अब V आ गया तो कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान काम है, Q बाई V। जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो, ये लगभग हर जगह यही काम करना होता है। क्या करना होता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, फिर C इक्वल टू क्यू बाई वी कर देते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो C कितना आ जाएगा, फिर Q डिवाइड हो जाएगा बस, Q बाई वी करने से, बाकी सब तो रहेगा ही। तो C क्या आ गया, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज़ पार्शियली फिल्ड with a dielectric slab of thickness T, T is less than D. This can be used as a general formula for parallel plate capacitor. जनरल फार्मूला की तरह कैसे यूज़ करेंगे, अगर प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो T हो जाएगा 0। प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी नहीं है, कम्प्लीटली फिल्ड भी नहीं, तो T 0 हो गया। तो C कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, T 0 हो गया, T 0 हो गया। और अगर कम्प्लीटली फिल कर दिया तो T इक्वल टू डी हो गया, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डी बाई के। तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया कम्प्लीटली फिल वाले का। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, अगर T इक्वल टू T डी से कम है, बट ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय मेटेलिक स्लैब अगर होता, अगर डाइलेक्ट्रिक की बजाय हम मेटेलिक स्लैब यूज़ करें तो क्या होगा, इफ़ ए metallic slab is used। मेटेलिक स्लैब यूज करने से क्या होगा, मेटल और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है, चार्ज सरफेस पे आता है, वो तो डाइलेक्ट्रिक में भी आया, बट अंदर फील्ड ज़ीरो होता है, अंदर फील्ड ज़ीरो होता है। तो अंदर फील्ड ज़ीरो हो जाने से क्या होगा, ये रीजन जो है ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, ये तो कैपेसिटर के हमारा काम ही नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ किया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ किया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, T बाई के बिकम्स 0। सो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी इतना रह जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स K इज़ इन्फिनिटी, K इन्फिनिटी है। कैसे इन्फिनिटी हो गया, K की वैल्यू अगर याद करो, यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस की थी सिग्मा बाय K, यहाँ से की थी ना, तो K इक्वल टू क्या आया, सिग्मा बाय सिग्मा माइनस P। ठीक है, व्हाट इज सिग्मा P, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। मेटल्स में पोलराइजेशन होता है, नहीं होता है। और सिग्मा माइनस, ऐसे भी बोल सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा P कहाँ था, मटेरियल के अंदर नेट चार्ज डेंसिटी थी। मेटल्स के अंदर तो नेट चार्ज होता ही नहीं है, मेटल्स के अंदर कोई स्टैटिक चार्ज नहीं होता है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा P बिकम्स 0, देयरफॉर K बिकम्स इन्फिनिटी, एंड इफ K इज़ इन्फिनिटी देन दिस टर्म बिकम्स 0, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मेटल भी है और D इक्वल टू T है, यानी कि कैपेसिटर के बीच में जो गैप है पूरा मेटल से ही भर दिया, तो फिर क्या बन जाएगा, इधर मेटल प्लेट इधर मेटल प्लेट, बीच में भी पूरा मेटल, तो वो तो एक मेटल का ब्लॉक बन गया पूरा। ठीक है, तो C कितना हो जाएगा, इफ़ D इक्वल टू T फॉर मेटेलिक स्लैब, मेटेलिक स्लैब, मेटेलिक स्लैब भी था और D इक्वल टू T भी था, तो क्या होगा, मेटेलिक स्लैब होने से ये 0 हो जाता है, D इक्वल टू T होने से ये भी 0 हो जाएगा, तो C कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बन गया, बना ना, इज़ इट पॉसिबल, इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला कैपेसिटर, मतलब चाहे जितना चार्ज स्टोर कर दो होगा। बिल्कुल वैसी बात हो गई, एक बकेट खरीद के लाए, भरते जा रहे हैं, वो तो खुला हुआ था ना,
तो भरते जा रहे, कुछ तो रहेगा ना पानी उसमें। लेकिन अभी हमने क्या किया, बकेट ऐसा बकेट है जिसमें पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है पूरे वॉल्यूम में, या हमने लिड लगा दिया ऊपर से, इनफाइनाइट कैपेसिटी है उसकी, तुम चार्ज दे पानी भरते रहो बट कभी भरेगा नहीं। ऐसा बकेट है जो अंदर से हॉलो है ही नहीं, वैसा कैपेसिटर है जो एक मेटेलिक स्लैब जैसा है। तो चार्ज केवल सरफेस पे रहेगा, बाल्टी पे पानी डालोगे खाली सरफेस में चिपका रहेगा। तो इनफाइनाइट कैपेसिटी का कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। बस हम क्या होगा, चार्ज दे सकते हैं बट वो होल्ड तो नहीं करेगा ना, सब लीक हो जाएगा। तो C इक्वल टू इन्फिनिटी का फिर मतलब क्या है, C इक्वल टू इन्फिनिटी का इस केस में मतलब ये है कि फिर ये कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से देंगे वो पूरे में फैल जाएगा एक जैसा। कैपेसिटर तब रहता है जब एक पॉजिटिव हो प्लेट, एक नेगेटिव हो, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल घटे, तब कैपेसिटर बनता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वो तो मेटालिक ब्लॉक हो गया, एक साइड में तुमने चार्ज दिया तो सब कनेक्टेड है, बीच में जो स्लैब है उससे सेकंड प्लेट उसके थ्रू कनेक्टेड है, तो जो भी चार्ज देंगे वो तो पूरे सरफेस में फैल जाएगा, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट इस केस के लिए बोल सकते हैं कि इनवैलिड है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा ही नहीं अगर तुमने पूरे गैप को मेटल से भर दिया। समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक एक नंबर वाले, 1 या 2 मार्क्स वाले बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो पहले ही डिस्कशन हुआ था कि इफ़ C इक्वल टू Q बाई V एंड Q इज़ 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C। सो आंसर इज indeterminate. You cannot determine because if Q is 0, V is also 0. So by this formula C equal to Q by V, it becomes 0 by 0. That is indeterminate. You cannot determine what will be the capacitance. ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो बाल्टी और पानी वाले एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हमने चार्ज को किसके सिमिलर बोला, पानी के, एंड वाटर लेवल को सिमिलर टू पोटेंशियल। तो जैसे जैसे पानी भरते हैं लेवल ऊपर उठता है, पानी ही नहीं भरा तो लेवल कितना होगा, 0, तो 0 बाई 0। और बकेट में पानी नहीं भरा यानी चार्ज नहीं दिया कैपेसिटर में, इट डजेंट मीन कि बकेट का कैपेसिटेंस नहीं है, उसकी कैपेसिटी तो है ही, तुमने पानी भरा नहीं है, तुम्हारी गलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बकेट का कैपेसिटी नहीं है। तो वैसे ही कैपेसिटर पे चार्ज नहीं दिया तो तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, जब तक लिखा ना हो। अगर बकेट में लिखा है कि हाँ 15 लीटर इसकी कैपेसिटी है तो हमें पता चल जाएगा कैपेसिटी 15 लीटर है। बट अगर लिखा ही नहीं है तो एक ही तरीका होता है, पानी डालो और फिर पता लगाओ कितना है। जब पानी नहीं डाला इट डजेंट मीन कि कैपेसिटी नहीं है, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो इफ़ Q इक्वल टू 0, C इज़ नॉट 0, C इज़ इनडिटर्मिनेट, यू कैन नॉट डिटरमाइन, इसका ये मतलब हुआ। और क्या था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेकेंड प्लेट, इफ़ द चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द फर्स्ट प्लेट देन व्हाई सेकेंड प्लेट इज केप्ट हियर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेकेंड प्लेट इन द कैपेसिटर। किसकी, पूरी बात बोलो, कैपेसिटर की, फर्स्ट प्लेट की। यस, द सेकेंड प्लेट बिकम्स नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन and hence decreases the potential of first plate, therefore more charge can be stored on the first plate. ठीक है, और बाकी ये जो यहाँ भी डिस्कशन हुआ कि अगर मेटल डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ से 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा कैपेसिटर का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसमें सिर्फ पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बाकी है। ईजी है, उसको हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ईजी है। चलो अभी क्लास एंड करते हैं।